Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with the topic of Venn diagram. We are going to start with Venn diagram. It is named after a British mathematician, John Venn, who has first started this practice. So why do we need a Venn diagram? We need a Venn diagram to diagrammatically represent a set. Fine, we need a Venn diagram to represent a set, to represent a set in the form of a diagram. Fine. So we have studied the universal set. It is represented with the letter U, capital U. So how do we draw a Venn diagram? We, we draw a rectangle first. Okay. This rectangle that we have drawn, this symbolizes the universal set U. This symbolizes the universal set U. Okay. So we'll write it outside the rectangle. This symbolizes the universal set U. Now if I say I have put inside a circle. Now this is going to represent our set A. For example, set A has the elements A, comma B, comma C. So our elements A, B and C will lie inside this circle which is representing the set A. Fine. So universal set can be, what can be the universal set? A, B, C, D, E. So what are the remaining elements which are not there in this set? D and E. So D and E will be written outside the circle. Why? Because they are not the part of set A but they are the part of universal set. So they will be written outside the circle and inside the rectangle. So this is how do we represent a set. So now next we have operation on sets. Okay, so first operation that we are going to study is union of two sets. Union of two sets. So let us consider set A and set B. So how to write down the union of set A and set B? We write it as A union B. This is the symbol for union. This is the symbol for union. Now what type of elements will this set have? X such that X belongs to A or X belongs to B. That means the set of A union B will have all the elements belonging to A as well as all the elements belonging to B. Let's have an example. For example, set A has 1, 2, 3, 4, 5 and set B has 6, 7, 8, 4, 3. So these are the elements that we have in set A and B. So A union B will be the set of all these elements. Set of all these elements 1, 2, 3, 4, 5. Then we have 6, 7 and 8. We will not repeat 4 and 3 because we have already written it here. The elements will not be repeated. We already know that we do not repeat elements when we write down the set. Okay. So what have we done in A union B? We have written the elements of set A and set B as a collection of elements for A union B. So we can say that in A union B, the set will have all the elements that are belonging to A and all the elements that are belonging to B. We have written X belongs to A or X belongs to B. That means वो सारे elements या तो A में हो या B में हो. Okay. We have discussed an example also. Now we will see how to draw a Venn diagram of A union B. So let's draw a rectangle first which will symbolize the universal set. Now we have set A and set B. So if I shade this portion, this entire portion of A, this shaded portion will resemble the set A, all the elements of set A, and again this shaded portion will resemble the elements of set B. So this is the Venn diagram of A union B. This is the Venn diagram of A union B. That means
all the elements of A and all the elements of B will be the elements of A union B. So now we have properties of union of set. मतलब कि हम जब यूनियन लेते हैं दो सेट का तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. So the first property is commutative law. First property is commutative law. So if we have two sets A and B, so union of A and B, A union B will be equal to B union A. जो एलिमेंट्स A यूनियन B के सेट में होंगे वही एलिमेंट्स B यूनियन A के सेट में होंगे. Fine, this is commutative law. Next we have associative law. Associative law. If we have three sets A, B and C, so union of, if we take the union of A and B first and then take the union of C, मतलब पहले हमने A यूनियन B निकाला, उसके बाद हमने C के साथ उसका यूनियन निकाला. This will be equal to A union B union C. That means अगर हमें तीन सेट दे रखे हैं और हमें तीनों का यूनियन लिखना है तो पहले हमें किसी भी दो सेट के यूनियन को थर्ड सेट की यूनियन, थर्ड सेट के एलिमेंट्स के साथ लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव A is equal to ABC, set A is equal to ABC, set B is equal to CDE, and set C is equal to FGH. So now we are evaluating A union B. A union B मतलब A and B के सारे elements, that means A, B, C, D, E. We will not repeat element, तो हम C को A की बाहर लिखेंगे. Then I am evaluating A union B union C. That means A union B का जो सेट है उसके एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स इनको साथ में लिखना है. So this will be A, B, C, D, E, F, G, H. ये हमारा बन गया A यूनियन B यूनियन C, जिसमें हमने पहले A यूनियन B निकाला फिर हमने उसको C के साथ यूनियन निकाला. अब हम देखते हैं अगर हम B यूनियन C करते हैं पहले. If we evaluate B union C, B union C मतलब B और C के सारे एलिमेंट्स. So C, D, E, F, G, H ये हमारा बन गया B union C. अब अगर मैं इसमें A union B union C मतलब B union C के जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं और A के सारे एलिमेंट्स उनको साथ में लिखना है. So we have A, B, C, D, E, F, G, H. हमने फिर से C को एक ही बार लिखा है क्योंकि हम सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं. अब आप ये देखिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों इक्वल हैं. सेट 1 एंड सेट 2 आर इक्वल. तो ये हमें क्या प्रूव करता है? एसोसिएट लॉ. दैट मीन्स हम पहले किसी भी दो सेट का यूनियन ले सकते हैं, बाद में हम थर्ड सेट के साथ उसका यूनियन ले सकते हैं. Okay, next we have the third one. We have union with phi. A union phi is equal to, अब phi में तो कोई एलिमेंट है नहीं तो A union phi क्या बन जाएगा? A. A union phi will be equal to A. Fourth property that we have is A union A is equal to A. किसी भी सेट का यूनियन अगर हम उसी सेट के साथ लेते हैं तो हमें वही सेट मिल जाता है क्योंकि दोनों में ऑब्वियसली कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सेम ही एलिमेंट्स होंगे. सो यूनियन विल बी द सेट इटसेल्फ. Okay, now we have the fifth one. It says universal set union A will be universal set. अब आप ये देखिए कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ये A इसका सबसेट होता है. A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. फाइन. तो A के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. So now next operation of set is intersection of sets. So let us consider two sets A and B. Consider sets A and B. So intersection of set A and B को हम कैसे लिखते हैं? A intersection B. A intersection B. This is the symbol for intersection. अब इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? This set will have elements X such that X belongs to A and X belongs to B. That means
सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। फाइन। सो हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन मीन्स राइटिंग द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू सेट। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स कौन से कैसे होंगे, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दैट मीन्स वो सभी एलिमेंट्स जो a में भी बिलोंग कर रहे हैं एंड वो सभी एलिमेंट्स जो b में भी बिलोंग कर रहे हैं। फाइन, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। अब हम इसका एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, लेट अस कंसिडर सेट a एज 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I am considering set B as set of even numbers 2, 4, 6, 8, 10. First 5 even numbers. Okay, so if I say A intersection B निकालिए, A intersection B कितना बन जाएगा? That means वो elements जो A में भी बिलोंग कर रहे हैं एंड B में भी बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। सो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे 2, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6। सो A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 2, 4, 6। फाइन, why? Because 2, 4, 6 are the common elements of A and B. Let's have a look at the Venn diagram of A intersection B. Venn diagram of A intersection B. सो वेन डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। रेक्टेंगल क्या सिंबलाइज करता है, हमारा यूनिवर्सल सेट। दिस रेक्टेंगल सिंबलाइजेस द यूनिवर्सल सेट। ओके, सो दिस इज आवर सेट U। अब हमारा सेट A, दिस इज आवर सेट A एंड दिस इज आवर सेट B। नाउ अब आप ये देखिए कि इन दोनों सेट में कॉमन कौन सा पार्ट है। कॉमन पार्ट ये है, ये पार्ट A में भी लाई कर रहा है, B में भी लाई कर रहा है। So this part of the Venn diagram is A intersection B. This part of the Venn diagram is A intersection B. Fine. अब हमें A intersection B देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर A intersection B जो है वो 5 है, दैट मीन्स A intersection B में कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A को हम मानते हैं A, B, C, D। फाइन, सेट B में हम ले लेते हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3। अब A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो A में भी हो और B में भी हो। फाइन, सो इसमें हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन B इज 5, कोई एलिमेंट नहीं है, द सेट इज एम्प्टी। फाइन, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सच सेट्स आर कॉल्ड disjoint sets. That means A and B are disjoint sets. Fine. Disjoint set का हम Venn diagram कैसे बनाते हैं? Again we'll draw a rectangle which will symbolize our universal set. Fine. Now this is our set A and this is our set B. अब इन दोनों ही सेट में कोई कॉमन नहीं है, सो यहाँ पर A intersection B is equal to 5. This is the Venn diagram for disjoint sets. Now we have properties of intersection of A and B. Properties of intersection. Okay, so first one is again commutative. That means A intersection B is equal to B intersection A. फाइन, अगर हम A इंटरसेक्शन B पहले निकालें या B इंटरसेक्शन A करें, कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों सेट के सेम ही है। तो इंटरसेक्शन के सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे, चाहे हम A इंटरसेक्शन B लिखें या B इंटरसेक्शन A लिखें। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law. This is the first one. Next we have A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। फाइन, अब आप जैसे हमने यूनियन में करा था कि पहले हमने दो सेट का यूनियन लिया, फिर हमने दूसरे दो सेट्स का यूनियन लिया, आंसर हमारा सेम आया था, सेट के एलिमेंट सेम आए थे। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में होता है,
पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करें और उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लें, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करें उसके बाद सी के साथ उसका इंटरसेक्शन लें, दोनों में ही सेट जो बनेगा उसके एलिमेंट्स सेम होंगे। फाइन, सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाई फाई में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए और फाई में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, सो अगेन द सेट विल बी एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई और फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई, क्योंकि दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए सेट जो होगा वो एम्प्टी ही होगा। फाइन, नाउ fourth property is A intersection A is equal to A। Obviously A के सभी एलिमेंट्स इस सेट में भी होंगे, सेम सेट का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो हमें वही सेट वापस मिलता है। Okay, so the fifth property that we have is universal set intersection A। अब universal set intersection A is always equal to A। See, अब आप ये देखिए कि A is a subset of universal set, that means A के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे। फाइन, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल के आएंगे इनमें, वही एलिमेंट जो हमारे सेट ए में है, दैट इज व्हाई यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको हम कैसे डिसोसिएट करेंगे, दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमारे पास क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो हाउ हैव वी ओपन्ड दिस ऑपरेशन, ए इंटरसेक्शन बी, हमने पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, देन देयर इज यूनियन, उसके बाद हमने यूनियन लगाया, देन वी हैव ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ operations of set. So now next operation that we are going to study is difference of two sets. So if we have two set A and B, so that difference A minus B is defined as x such that x belongs to A and x does not belongs to B। That means A minus B में वही elements आएंगे जो A में present हैं but B में present नहीं है, राइट। ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए एज 1 2 3 4 5 and 6। Similarly I have set B which has elements 2 3 10 12 6 13। अब आपको इनमें से वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में है बट बी में नहीं है। दैट मीन्स 1 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। वी कैन नॉट राइट 2 and 3 बिकॉज 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो, तो हम 2 और 3 नहीं लिख सकते। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 4 सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। वी हैव 5 इज नॉट बिलोंगिंग इन सेट बी, बट वी कैन नॉट राइट 6 क्योंकि 6 जो है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। सो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आए, ए के वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली बी माइनस ए विल बी x such that x belongs to B and x does not belongs to A। That means B के वो एलिमेंट्स जो B में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। फाइन, सो B माइनस ए विल हैव, सेम एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट्स क्या होंगे। Now if we begin with 2 is present in set A also, we cannot write 2 in B minus A। It has 3 also, we cannot write 3 in B minus A। Next we have 10, अब 10 set A में belong नहीं कर रहा है तो B minus A में 10 belong करेगा। We have 12, similarly we have 13। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये A में belong नहीं कर रहे हैं, that is why ये B minus A सेट के एलिमेंट्स बनेंगे। फाइन, ओके। अब आप ये देखिए जो A माइनस बी है, A माइनस बी हमारा क्या बन के आया है, सबसेट बनकर आया है A का। 1 4 5 प्रेजेंट है सेट A में, तो A माइनस बी क्या हो गया,
सबसेट हो गया ए का। So, हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आया a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या निकल कर आया, अब b माइनस ए देखिए, b माइनस ए में एलिमेंट्स है 10, 12 एंड 13। यही सेम एलिमेंट्स b में भी हैं 10, 12 एंड 13। सो दिस विल बी अ सबसेट ऑफ b। So another result that we have is b minus a is a subset of b. So these are the two important results that we need to keep in mind. Okay, next let's have the Venn diagram of a minus b. Now we have the rectangle with us, which is symbolizing a universal set. Okay, this is our Venn diagram and this rectangle symbolizes the universal set. We have the set A and we have set B. This is A and this is B. Now this particular portion that I am shading right now, this will be A minus B. This will be A minus B. अब इसमें देखिए वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ A में है B में नहीं है, राइट? इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो A में है B में नहीं है। Similarly, if I shade this part, so इस शेडेड पोर्शन क्या रिजेंबल कर रहा है? ये शेडेड पोर्शन रिजेंबल कर रहा है B के एलिमेंट्स जो सिर्फ B में है A में नहीं है। सो दिस इज B माइनस A। दिस इज B माइनस A। ये हमने इस पार्ट को शेड करा तो A माइनस B मिला। वाई? बिकॉज इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट B। Similarly, this shaded portion resembles all the elements of B but not A. So this is A minus B. This is B minus A. Okay. अब हमारे पास क्या एक रिजल्ट बनकर आता है, जिसको वी ऑलरेडी नो दैट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। आप एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। A माइनस बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 4, 5। B माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 10, 12, 13। ऑब्वियसली A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट रिजल्ट इज A माइनस 5 इज इक्वल टू A। अब 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट? 5 इज एन एम्प्टी सेट। सो A minus 5 मीन्स सभी एलिमेंट्स A में हैं लेकिन 5 में नहीं है। सो ऑब्वियसली द सेट विल बी A. That means A minus 5 will be the set itself, that is A. Now the third is A minus A. A minus A 5 क्यों होगा? A minus A 5 इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली माइनस डिफरेंस निकालते वक्त हमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, बट A में वही एलिमेंट्स होंगे, राइट? हम A माइनस A करेंगे तो हमारे तो सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, कोई ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड सेट में नहीं है। That's why A minus A will be an empty set. Okay. Next property that we have is A minus B, B minus A and A intersection B are disjoint sets. Disjoint sets means they have nothing in common. They have no element in common. They have no element in common. अब आप ये देखिए, ये हमारा A माइनस बी है, कोई कॉमन पोर्शन शेड नहीं हो रहा है। ये हमारा B माइनस ए है, अगेन कोई कॉमन पोर्शन शेड नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है निकलकर? A इंटरसेक्शन B। अब आप ये देखिए कि A माइनस बी, B माइनस ए और A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए A माइनस बी हमने यहाँ 1, 4, 5 निकाला हुआ है। B minus A we have taken out as 10, 12 and 13. If I am evaluating A intersection B, A intersection B means all the common elements of A and B. So the only common elements are 2, 3 and 6. 2, 3 and 6 are present in A as well as B. So A intersection B will be 2, 3 and 6. अब आप ये देखिए कि A minus B के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1, 4 and 5. B माइनस ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 10, 12 एंड 13। A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 2, 3 एंड 6। सो इनमें हमारे को कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रही है। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे कि A माइनस बी
intersection B minus A intersection A intersection B will be equal to 5 because there is no element in common between these three sets.